Yes. So, good evening, everyone. And who wants to share how was your magical morning? You started with opening your eyes and saying thank you for being alive to the fan, ceiling. Until when did you continue, and what impact did it have it on your day? Did you remember? Someone wants to share? Yes? No? Okay. It's still going. Excellent, of course. बट उसके कारण आपके दिन में और कुछ अच्छा हुआ जैसा आप चाह रहे थे वैसे वैसे होता रहा एंड यू आर मोर ग्रेटफुल डिड इट हैपन लाइक दैट Okay. So there is something very important that I want to discuss in the session today because today's chapter is really amazing. Okay. So we will start right at 9 o'clock. I will discuss what I want to, and then we'll start with the reading. Okay. So any sharing till now? Okay. आपका दिन बहुत peaceful जा रहा था आदित्य जी. Yes, I am understanding that आप थोड़े से occupied हैं इसीलिए आप लिख रहे हो. Yeah. And और कोई share करना चाहता है? Yes, Adharv. Yes, you're looking very cute. Hi. Hi, Gul. नहीं Yeah. Okay. Very good. And I love the way he does his magic tricks. Really cute. Yeah. Yes, we will do 10 little fingers. I know you're waiting for that. Hmm? Let some more people join in, then we'll start with the 10 little fingers. Yeah. Shruti, you were doing the magical morning practice? Yes, Yeah. today I And did. today you found it Yes. a little different than what you were doing the other days? Yeah, because usually we used to get up and write blessings. तो बीच में बहुत टाइम जाता था तैयार हाँ. होने तक कि दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते थे. So it was like today mind was busy with saying thank you on many things, like while getting ready, while brushing teeth, everything मतलब. Okay, okay. Yes, very nice. And today I found a new thing to be thankful for. Every time I would, see, because I travel around, I commute a lot during the day for my work. So I would normally thank my car. Okay, कार का एसी जब गर्मी रहती है तो कार का एसी ड्राइवर को करते हैं पेट्रोल पंप एंड ऑल दैट करते रहते हैं. टुडे इट वाज रेनिंग एंड सडनली आई थॉट द विंडोज आर सो इम्पोर्टेंट एंड आज हमको लगता है इन सो मेनी मंथ्स हमने पहली बार कार के विंडो के लिए थैंक यू किया होगा. हाँ, कि पानी बरस रहा था एंड आई थॉट विंडोज आर सो इम्पोर्टेंट. विंडो नहीं होती तो सारा पानी कार के अंदर चला था. तो आई वाज वेरी थैंकफुल फॉर द विंडोज ऑल्सो. तो ऐसे आप देखो कि इतने दिन तक एंड देन सोनिया जी एट दैट ना कमोड के लिए थैंक यू करती है. हमने बोला हाँ ये तो करते हैं. फिर आज मेरे को लगा नहीं सीट कवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. या कमोड का सीट भी कितना इंपॉर्टेंट है. नहीं दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. हैज टू बी क्लीन हैज टू बी नीट. सो उसके लिए भी आज दो न्यू आइटम्स के लिए हमने थैंक यू किया. रिया जी, आज मैंने भी सुबह अपने बेटा को मैं जब छोड़ने जा रही थी ना बस स्टॉप, मैंने गाड़ी के वाइपर के लिए थैंक यू बोला. यस यस. या वेरी गुड. तो ऐसे ही आप देखिए कितने चीजें जिनको अपन टेकन फॉर ग्रांटेड रखते हैं लोग लगता है कि एकदम नॉर्मल चीजें हैं. तो उन वो जैसे जैसे याद आते जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ. वरना उसके अलावा हम लोग कुछ कुछ तो भी ना कुछ डिफरेंट चीजें वियर्ड चीजें भी आती रहती हैं हमारे मन में. सो दिस प्रैक्टिस इज सो नाइस दैट यू आर फोकसिंग ऑन थिंग्स एंड लुकिंग एट द क्वालिटीज ऑफ देम. या सो ऐसे आप आपके पास और भी कुछ कुछ ऐसे आइडिया हैं तो प्लीज शेयर. नहीं तो अदरवाइज ये सेल्फ डिस्कवरी भी अच्छी होती है. ओके. सो आई थिंक फॉर आवर लिटिल participant here, let's start with the 10 little fingers. He's getting quite excited to do that. Then we'll start with the reading. So please unmute yourself, switch on the cameras, and let's do 10 little fingers. Okay, Adhar? Yes? Yeah. So, one, two, three, start. 10 little fingers, 10 little toes, two little ears, and one little nose. 10 little fingers, 10 little toes, two little ears, and one little nose. Excellent. Very good. Very good. Yeah. At least, some people are, someone is excited to come to my session. Yeah. Yes, Adhar. सो एनी शेयरिंग कैसा लग रहा है आपको अपने ब्लेसिंग्स लिख के. आज हम लोग सेकेंड वीक के मिड में हैं. वी आर ऑन द 12th डे ऑफ द मैजिक बुक.
आपको कुछ शेयर करना है, कुछ अच्छा ड्रीम्स का कुछ लग रहा है कि यस समथिंग इज हैपनिंग, कुछ छोटी छोटी चीजें जो आप सोच रहे हैं वो कुछ सच हो रही हैं। ओके, ठीक है। तो अब अभी हम लोग बस ड्रीम्स पे, अब हम लोग परसों से, कल से इनफैक्ट हम लोग वर्क करने वाले हैं। तो आई एम श्योर आप सबकी आपकी ड्रीम लिस्ट रेडी हो गई होगी, या एंड वील स्टार्ट आवर वर्क ऑन देम टुमारो। एंड अभी तक जो आप कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, आप अपने ग्रैटिट्यूड के पॉइंट्स इकट्ठे करके अपना मैग्नेट को आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ताकि कल से जब हम एक्चुअल में हमारी ड्रीम के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करें तो वो और जल्दी हमारे तरफ अट्रैक्ट होने लगे। ओके, सो टुडेज चैप्टर इज ऑल अबाउट पीपल हु हैव मेड अ डिफरेंस इन आवर लाइफ, या तो उसके लिए हम एक पहले छोटा सा आपके संग एक तो शेयरिंग करेंगे। लेट्स डिस्कस दैट। या सो एवरीवन कैन सी दिस सर्कल? यस, तो जो लोग को अटेंड कर चुके हैं पहले सेशन में, आपको पता है इसके बारे में। हाँ, जो लोग न्यू हैं वो लोग भी आप देखिए, और जो लोग कर भी चुके हैं अगर इसके बारे में भूल गए हैं तो आप देखिए, मे बी इट विल हेल्प यू समवेयर। हम लोग को बोला जाता है ना, एवरीथिंग इन लाइफ इज अ सर्कल। अर्थ में हर कुछ एक सर्कल में ही चलता है, एवरीथिंग, है ना। आप वेव्स की तरफ भी देखिए तो हाई होता है, फिर लो टाइड आती है, हाई टाइड, लो टाइड ऐसे आता है। सीजन्स भी आप देखिए तो सब साइकिल में चलते हैं। विंटर के बाद फिर स्प्रिंग, समर, ऑटम, फिर से वो घूम के वैसे ही आता है। तो हर चीज लाइफ में एक सर्कल में ही आती है, ठीक है। तो आप बोलोगे सुख दुख वो भी ऐसे ही आता है। एक दिन आप रो रहे हो तो अगर आप, अपन ऐसे भी बोलते हैं ना, अरे आज रो रहे हैं तो कल रोएंगे। हाउ मेनी ऑफ यू यूज्ड टू से दैट आल्सो व्हेन यू वर ग्रोइंग अप? या अभी भी कई जन आप ऐसा मन में सोचते हैं, अरे ज्यादा नहीं हंसेंगे वरना कल रोना पड़ेगा, ऐसा कोई सोचता है? ये तो एकदम भी गलत है। पर एक चीज जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि आपने देखा है कभी जाइंट व्हील पे आप बैठे हो, छोटे में राइड्स पे, कि आपको डर लगता है आप नहीं बैठते हो? बैठते हैं। छोटे में आपने देखा तो होगा ही, राइट। अगर डर लगता भी है तो एटलीस्ट एक बार बैठ के डर लगा होगा तभी। तो आपने देखा होगा कि ये वाला जो आप देख रहे हो यहाँ पे, उसमें क्या होता है आजकल, तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, इट वर्क्स ऑन अ मोटर। पहले क्या होता था, एक आदमी, अगर हम इसको आप जाइंट व्हील की तरह सोचेंगे तो यहाँ पे नीचे एक आदमी खड़ा रहता था और वो नीचे से ऐसे पुश करता था, राइट। और उसको सबसे ज्यादा ताकत यहीं पे लगती थी। ऑफ कोर्स वो ऊपर तो पुश कर नहीं सकता है, हाँ, प्लस ऊपर पुश जरूरत ही नहीं होती है। यहाँ से ऑटोमेटिक आप नीचे ही आते हो। यहाँ पे जितने जोर से वो पुश करता जाता है उतना ज्यादा जो साइकिल है वो ऐसे ऐसे जो ऊपर चला जाता है। एवरीवन रिमेंबर्स दैट? या तो हमारे लाइफ में भी, हमारी लाइफ का साइकिल भी इसी टाइप से चलता है। जब हम खुश होते हैं तो हम यहाँ टॉप पे रहते हैं। एवरीवन कैन सी दिस कर्सर ना? जब हम खुश होते हैं हम तब एकदम टॉप पे होते हैं, इस एरो के पास में होते हैं। और जब हम सैड होते हैं, लो होते हैं, तो हम लोग जनरली इस साइकिल में, इस जाइंट व्हील से नीचे उतर के आ रहे होते हैं। हाँ, आपको जाइंट व्हील में सबसे अच्छा कहाँ पे लगता है? यहीं पे अच्छा लगता होगा, टॉप पे। यू कैन सी एवरीथिंग, द ब्रीज इज सो नाइस, एंड यू नो लाइक सबसे ऊपर यू कैन सी एवरीथिंग कि कहाँ कॉटन कैंडी, वो कैंडी फ्लॉस वाला खड़ा हुआ है, कहाँ पे और राइड्स हैं, लाइन कितनी लंबी, एवरी वन सीम्स सो स्मॉल। आप सब चीज़ों से ऊंचे हो, यू फीलिंग नाइस, शोर कुछ नहीं आ रहा होता है, एवरीथिंग इज वेरी नाइस एंड प्लेजेंट। तो अगर आप अपने ड्रीम्स अचीव करोगे तो आप जनरली यहाँ रह के बहुत खुश हो रहे होगे। यस। अब अगर हम लोग नीचे रहते हैं तो आप अपने लाइफ के उस स्टेज में हो जब आप सैड हो, दुखी हो रहे हो, व्हेन यू वांट टू लिसन टू गजल्स, व्हेन यू वांट टू लिसन टू सैड सॉन्ग्स, या तो जब आप यहाँ पे रह जाओगे तो अब क्या होगा, आपको ऊपर आने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो आप कैसे ऊपर आते हो? जब यहाँ पे कोई इंसान आपको पुश करता है। कैसे पुश करता है? ऊपर जाने के लिए पुश करता है। यानी कि आप दुखी हो रहे हो, सैड हो रहे हो, कोई आपको मोटिवेट करता है, तब आप ऊपर की तरफ जाते हो, है ना। ऐसे ही होता है ना, दैट यू आर सैड एंड लो। आप नॉर्मल कोर्स में भी सोचो, आज के दिन में कुछ हुआ, यू आर अ लिटिल अपसेट अबाउट इट, तो मे बी यू आर हियर। हाँ, अब आप यहाँ पे हो तो वो नीचे तो आएगा ही, बिकॉज द साइकिल गोज लाइक दिस। जो ऊपर है अगर वो नीचे आ रहा है तो वो यहाँ तक आएगा ही, वो आएगा ही नीचे। अब लेकिन नीचे कितने देर रहता है वो किस पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ से कितने फोर्स से आ रहे हो। सेकंड, यहाँ पे कौन आपको पुश कर रहा है वापस ऊपर जाने के लिए, लाइफ में ऊपर जाने के लिए। यस। तो जब आप नीचे आए, सपोज यू कॉल्ड अप योर मॉम
एंड सेड कि मम्मा आज मदर इन लॉ ने ऐसे बोल दिया, या सिस्टर इन लॉ ने ऐसे बोल दिया, या मेड ने ऐसे बोल दिया, या हस्बैंड ने ऐसे बोल दिया, या ऑफिस में कुछ हो गया. यू आर स्पीकिंग टू योर मॉम एंड योर मॉम इज वेरी एनकरेजिंग. या एंड शी सेड कोई बात नहीं, उसका भी डाउन होगा, इग्नोर इट, कल सुबह एकदम फ्रेश उठना. तो क्या हुआ, आपकी मॉम ने आपको पुश किया और आप इस जगह पे नहीं रहे. या आप खाली टच एंड गो करके आप वापस कल के दिन के लिए फ्रेश आप ऊपर आने लगे. तो क्या हुआ, आप वापस अपना हैप्पी स्टेट में आ गए, वापस आप खुशी के स्टेट में आ गए. यस. अब आप यहाँ पे जब हो तो आपको यहाँ पे अपने आप को हमको बैलेंस करके रहना पड़ता है. ठीक है. यहाँ पे क्या होता है, आपने देखा है वो वाला कोई टॉय भी होता है ना, वो हमेशा ऐसे पैर से ऐसे बॉल को ऐसे ऐसे बैलेंस करता रहता है. तो व्हेन वी आर बैलेंसिंग ओवर हियर, बैलेंस कैसे करते हैं हम, बैलेंस करते हैं बाय स्टेइंग इन द पॉजिटिव फीलिंग्स. जितना ज़्यादा हम पॉजिटिव फीलिंग्स में रहेंगे उतना ज़्यादा हम यहाँ पे खुली हवा, स्काई को देख सकते हैं, व्यू बहुत अच्छा है. हाँ, उतना ज़्यादा हम यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं लाइफ को. ठीक है. उतना अगर हम हैप्पी पॉजिटिव रहेंगे, विल कीप ऑन एंजॉइंग. फिर कुछ हुआ, यू आर फीलिंग सैड, समथिंग हैपेंड एंड यू स्टार्ट फॉलिंग डाउन. ओके. आप यहाँ पे आए, आप गिर रहे हो, यहाँ पे आप आओगे ही. यस. आप यहाँ पे सैड हो रहे हो थोड़ा, या सॉरी एंग्री हो रहे हो, कोई चीज़ से इरिटेट हो रहे हो, नाउ यू कॉल अप अनदर फ्रेंड. कल आपने मम्मा को फ़ोन किया था, तो आज सपोज आपने एक फ्रेंड को कॉल कर लिया एंड शी वॉज नॉट दैट एनकरेजिंग. शी सेड हाँ हाँ बॉस लोग तो होते ही बदमाश हैं, ये है वो है, हाँ हमेशा उन्हीं को प्रमोट करते हैं जो पूरा टाइम बटरिंग करते रहते हैं. एंड शी इज डूइंग वॉट इज शी डूइंग, इज शी टेलिंग यू पॉजिटिव थिंग्स और इज शी टेलिंग यू नेगेटिव थिंग्स. वो आपके हाँ में हाँ मिला रही है, बट इज शी टेलिंग यू टू मूव ऑन, डू द पॉजिटिव थिंग? नो, वो आपको नेगेटिव चीज़ें ही बोल रही है ना. अगर वो आपको कह रही कि हाँ हाँ आप भी नेगेटिव बोल रहे हो, वो भी नेगेटिव बोल रही है, तब क्या होगा, आप यहाँ पे नीचे आओगे और आप यहीं रह जाओगे. क्यों? क्योंकि अगर आप नेगेटिविटी कर रहे हो, आप उसकी नेगेटिविटी में और करते जो दोनों जन मिल के बॉस के बारे में बोल रहे हैं. आई एम सेइंग बॉस, इट कैन बी एनी वन. हाँ, दोनों चीज़, बॉस हो सकता है, हेल्थ हो सकती है, फिनेंसेस हो सकते हैं. जिस चीज़ के बारे में आप सैड हो या इरिटेटेड हो, वो उसमें और कंट्रीब्यूशन कर रही है और दोनों मिलके यही बातें कर रहे हैं. तो क्या होगा, आप उस वाले साइकिल में, जिस साइकिल की बात आप कर रहे थे, आप उस साइकिल में यहाँ पे ज़्यादा देर के लिए अटक जाओगे. आप लोग दोनों ने मिलके बॉस के बारे में बात की, तो आपके बॉस का ये जो साइकिल है, हाँ, वो और आपको ऐसे मौके देगा कि आप बॉस के बारे में और बातें अपनी फ्रेंड को बोलो, हस्बैंड को बोलो, वाइफ को बोलो, माने जिसको बोलना है, यू विल गेट मोर चांसेस टू स्पीक अबाउट योर बॉस. वाई? बिकॉज व्हेन यू आर टॉकिंग, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, एंड जैसी बातें आप कर रहे हैं वैसे सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, लोग और आ रहे हैं जो आपको उन बातों में बढ़ावा कराएंगे. राइट. लाइक यू आर अट्रैक्टिंग दोज काइंड ऑफ थिंग्स. फिर आप यहीं रह गए. एक और बहुत अच्छी बात यह है कि आप, उसने पुश कर दिया, जब तक आप खुद भी अपने आप को पॉजिटिविटी में नहीं लाओगे तब तक भी आप यहीं ले आओगे, यहीं पे ही रह जाओगे उस बॉस वाले साइकिल में. इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग? सबको आ रहा है समझ में? यस और नो? अदरवाइज मे बी आई हैव टू ट्राई सम अदर एग्जांपल, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सबको आ रहा है ना समझ में? सोनिया जी यू आर सेइंग यस, और किसी को? Yes. या ओके. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे साइकिल चलते हैं. आप बॉस का बोलो, हस्बैंड के लिए बोलो, अपनी हेल्थ के लिए बोलो, अपने फिनेंसेस के लिए बोलो, हर टाइम हम लोग इतने सारे हमारे लाइफ में खुद ही सर्कल चलते रहते हैं. साइकिल, सर्कल, आप जो भी उसको बोलो, वो चलते रहते हैं. और हर में हम लोग अलग अलग स्टेट पे होते हैं. ठीक है. मे बी आज हम अपने रिलेशनशिप के लिए बहुत पॉजिटिव हैं, तो मे बी हेल्थ के बारे में थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं. हाँ, तब क्या होता है कि इस इतने सारे में अगर हम जनरल में थोड़े ओके टाइप्स हैं, तो हम उस वाले को भी ओके टाइप्स वाले लेवल में ले आएंगे. ओके. बट अगर हम सब में थोड़े लो पे हैं, तो जिसमें हम थोड़ा अच्छे भी होते हैं उसमें भी फिर हम लो जाने लगते हैं. हाँ, तो हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस समय जब हम टॉप से थोड़ा नीचे आ रहे हों, बिकॉज अगर हम पॉजिटिविटी में नहीं रहेंगे तो हम आएंगे ही नीचे, बिकॉज दिस इज हाउ इट वर्क्स. और आपको पॉजिटिविटी में रहने के लिए क्या करना है, आपको हैप्पी थॉट्स रखने हैं, हैप्पी फीलिंग्स रखनी है, आपको अफर्मेशंस करने हैं, आपको अपने मूड शिफ्टर्स यूज करने हैं. जितने ज़्यादा आप ये सब चीज़ें करोगे उतना ज़्यादा आप टॉप पे रहोगे और आप टॉप पे बैलेंस करना आपको आ जाएगा. माने आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरी फीलिंग लो जा रही है, इमीडिएटली लेट मी कॉल समवन हु इज ऑन अ हाई जोन. ठीक है. जो पॉजिटिविटी में रहता है, या उनसे बात करो जो पॉजिटिव रहते हैं, या अपना मूड शिफ्टर यूज करो ताकि आप यहाँ पे बैलेंस करना वापस आ जाओ. ठीक है. आपने देखा ना उस रोप पे जो लड़की चल रही होती है, ऐसे ऐसे डंडी को लेके बैलेंस कर रही होती है,
यस, उसने शुरू में कितनी प्रैक्टिस की होगी, हाँ, तब वो वहाँ पे बैलेंस करिए, फिर भी कभी लगता है कि वो ऐसे-ऐसे हो रही है, राइट? उसका बैलेंस हो रहा है ऐसे इधर-उधर, लेकिन फिर वो वापस बैलेंस कर लेती है। वो क्यों करती है? क्योंकि उसने इतनी सारी प्रैक्टिस की है, या? तो हम लोग को ये बहुत प्रैक्टिस करना है कि हम लोग पॉजिटिविटी में रहें, हैप्पीनेस में रहें। अच्छा, अब आप तो ठीक हो, आप पॉजिटिव हो, सपोज़ आपको किसी ने फ़ोन किया जो नीचे जा रही है, ठीक है? आप उसको तो उठा रहे हो, लेकिन उसने कुछ ऐसा बोल दिया कि आप भी कूद के उसके संग नीचे चले गए। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप जो सामने वाले को एनकरेज करना चाह रहे हो, आप किस टाइप से कर रहे हो। हैव यू सीन मे बी योर रिलेटिव हैज कॉल्ड और अ बॉस हैज कॉल्ड एंड दे आर शेयरिंग सम सैड थिंग्स विद यू, एंड आप पहले तो पॉजिटिव थे, उसको समझाते समझाते आप भी दुखी हो जाते हो, आप भी सैड हो जाते हो। हैव यू एक्सपीरियंस दिस? मेरे संग तो अभी भी ऐसा होता है। आई ट्राई टू से नहीं 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 नहीं, तो आपको देखना है आप उस बात को कितना जल्दी कट शॉर्ट कर दो। अगर, क्योंकि क्या होगा, अगर आप भी उसके संग नेगेटिविटी में चले जाओगे, वो तो पहले से ही सैड है, आप भी नीचे चले जाओगे, तो आप पता नहीं, मे बी आप और भी किसी को नीचे ले आओ। हम्म तो हमको ये बहुत ध्यान रखना है कि ये साइकिल हमेशा चलती रहती है। जब आप नीचे जा रहे हो, तो आपको किससे बात करनी है, आपको ये पता होना चाहिए। सेकंड, अगर कोई नहीं मिल रहा है, तो आप जब यहाँ पे हो, उसको थोड़ी देर रहने दो, लेट दैट नेगेटिविटी बी देयर फॉर सम टाइम, देन आपको उससे बहुत जल्दी बाहर निकल के आना है। ऐसे नहीं मतलब थोड़ा रोना आ रहा है रो लो, हाँ, तो थोड़ा रोना आ रहा है रो लीजिए, लेकिन फिर तुरंत, क्योंकि आपको पता है आप यहाँ ज़्यादा देर रहोगे तो आपका कोई भला नहीं होने वाला, आप दूसरे लोगों को भी नहीं हेल्प कर पाओगे, तो आपको वापस ऊपर आना ही है, ठीक है? यहाँ पे आप किसी के लिए वो पुश बनो, ओके? या आप उस इंसान को पहचानो या उस चीज़ को पहचानो जो आपको इस जगह से बाहर निकाल के ले आए, ओके? तो आज का जो चैप्टर है वो इसी के बारे में है, दैट हु वाज दैट पर्सन इन योर लाइफ हु मेड दैट पुश, okay, to make you come out of that negativity, or something who has always helped you, या हमको पता ही नहीं है कितने बार होता है someone has helped us and we have gone ahead in our life। आप सबने जब वी मेट देखी है? यस, जिनका कैमरा ऑफ है, आई एम अज्यूमिंग वो सब बोल रहे Yes, हैं कि यस, हाँ हाँ देखिए, yes, हमने देखी है, yes. यस। तो आप बताइए, जब शाहिद कपूर ट्रेन से वो जंप करने वाले होता है, तो आपको क्या लगता है करीना कपूर ने क्या किया था वहां पे? उसको एक्चुअल पुश कर दिया था ट्रेन से कूदने का, कि उसको पुश किया था नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ? बोलिए, डोंट यू थिंक करीना कपूर No. वाज दैट फैक्टर इन हिज लाइफ, जिसने उसको उस साइकिल Yes, के नीचे से ऊपर लेके आ गया? Yeah, so that is yes, the yes. kind of a person who is there, that is the kind of a person you have to be for someone else। या उसको नहीं पता था कि शाहिद कपूर जंप करने वाला है, ठीक है? उसको तो नहीं पता था, उसको तो लगा कि वैसे ही खड़ा है वो गिरने वाला है, हाँ? तो ऐसा जन आपको बनना है। वो ऐसा जन आप कब बनोगे? जब आप पॉजिटिविटी में रहेंगे, जब आप खुश रहोगे, जब आपको पता होगा कि नीचे रहना गलत है और हमेशा पॉजिटिविटी में रहना है, ओके? तो ये आप कैसे बनोगे? हाँ, हमने वो वाला वीडियो देखा था कि ग्लास में वो मडी वाटर था, उसमें आप इतना पानी डालो कि तो आपने लाइफ में पहले उतना वाटर डालना है, ठीक है? ताकि आपके लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी हो, और तभी आप दूसरे जन के लाइफ में भी वो वाटर बन सकते हो, ओके? सो लेट्स स्टार्ट। हु वांट्स टू रीड टुडे? नो वन वांट्स टू रीड? सब लोग चुप हो गए, हाँ? Someone new wants to read? ओके, ठीक है, लेट मी शेयर द स्क्रीन। जिसका कैमरा ऑन होगा उसी को हम बोल देंगे रीड करने के लिए, ओके? सो पल्लवी जी एंड हेमा जी, सोनिया जी, सुप्रिया, आपको पढ़ना है? श्रुति, देयर सो मेनी। Yes, as you wish. एज यू आप विश, ही I चूज can कर लो, read. इन्हीं मिनी मिनामो कर लो, कौन पढ़ेगा? I We are can here. read, but I was saying if someone new wants to read, so I या was दैट इज quiet. व्हाट आई वुड हैव आल्सो लाइक, बिकॉज़ इट्स वेरी नाइस टू रीड। एंड आज Yes, का चैप्टर yes. बहुत ज्यादा माने लाइक क्यूट सा चैप्टर है, जस्ट 4 पेजेस, Yes, 4 I'll go. I'll read. या ओके ओके, वंडरफुल। सो या प्लीज स्टार्ट रीडिंग। Day 12, Magical People Who Made a Difference. या तो अगर हम हिंदी में इसको देखते हैं, तो आप ये पिक्चर देखिए। ये आपको लग रहा है लिविंग रूम या हॉल का, जैसे हम लोग पहले हॉल बोलते थे, हाँ? उसका एक वो रूम है एक तो, यहाँ पे पीछे
कैबिनेट रखी हुई है, उसके अंदर आपको बुक्स दिख रहे होंगे, ग्लास शटर है, उसके अंदर ये बुक्स रखी हुई हैं, नीचे ड्रॉर्स हैं, एक सिंगल सोफा यहाँ है, एक डबल सोफा है, सनलाइट आ रही है, हमको सनलाइट लग रहा है, कुड बी जस्ट द लाइट इज ऑन, एंड देयर इज अ टेबल ओवर हियर एंड यू सी देयर इज एन एल्बम। सबको दिख रहा है एक एल्बम रखी हुई है, या एंड आप देखिए सब में फोटोग्राफ्स हैं, एक ये छोटा बेबी है, यहाँ पे कोई बड़ा जन है, यहाँ पे भी कोई जन है, ये भी मान लाइक एंड ऑल ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स। तो आप देखो, और यहाँ पे बहुत सारा मैजिक डस्ट आ रहा है। इज रोंडा बर्न टेलिंग अस दैट वी हैव टू गो बैक in our childhood, okay, or it's some time back, and think of the people who have put magic in our life? Are we talking about those people? Yeah, I don't know, let's read, because today's chapter is people who made a difference. In whose life? In our life. Life. Yeah, Yes. please start. At times, our own light goes out and is rekindled by a spark from another person. Each one of us has cause to think with deep gratitude of those who have lighted the flame within us. Hmm. Albert Schweitzer, Hmm. 1875 to 1965, Nobel Peace Prize winning medical missionary and philosopher. या तो ये कह रहे हैं कि जब हमारी लाइट ऑफ हो रही होती है, और कोई और उस पर स्पार्क जला देता है, कैसे? कोई और उसकी बत्ती जला देता है, सपोज आप ये सोचिए, या कोई और उसमें दिया जला देता है, तब हमको उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करना है। किसके लिए? जिन्होंने हमारे अंदर उस बुझती लौ को जलाया। ओके, इट्स लाइक ऐसा आप सोचो, उन लोगों को ग्रैटिट्यूड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आप देखिए, ये मेडिकल मिशनरी हैं, इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, एंड ही इज टेलिंग अस दैट ग्रैटिट्यूड इज सो इम्पॉर्टेंट। और किसके लिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? जिसने, जब हम लो थे, जब हम सैड थे, उसने हमको रास्ता दिखाया, उसने, हम दुखी हो रहे थे, मे बी हमने गिव अप कर दिया था, उसने हमको पॉजिटिविटी से एनकरेज किया और हम आज हैप्पी हो गए। तो आपके लाइफ में आप बोलोगे नहीं मेरी लाइफ तो हमेशा से ही हैप्पी थी, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, आई डोंट नो किसके बारे में आज ग्रैटिट्यूड करना है, हमको पता ही नहीं है, मेरी लाइफ में कुछ ऐसा नहीं हुआ है। ओके, बट हर जन के लाइफ में ऐसा कोई ना कोई होता ही है। और आज की जो प्रैक्टिस है वो ये है, इतनी पावरफुल प्रैक्टिस है कि जब हम उन लोगों के बारे में ग्रैटिट्यूड करेंगे, हाँ, तब आप देखिएगा कितना ज़्यादा मज़ा आएगा लाइफ में। क्या, प्लीज रीड। Yes. Every one of us has received help, support, or guidance from other people at particular times in our life when we needed it most. Sometimes another person alerts the course of our life through their encouragement, guidance, or just being there at the right time. And then life goes on, and we tend to forget those times when one person touched us or changed our life. Sometimes you don't even realize the impact a person had until well into the future. When you look back on your own life and realize that a particular person was pivotal. pivotal in magically changing the direction of your life for the better. या तो हम सबको किसी ना किसी ने किसी ना किसी तरह से हेल्प किया है, सपोर्ट किया है, गाइड किया है। ठीक है, स्पेशली जब जब हमको बहुत ज़रूरत थी, उस समय तो किए ही, बाकी टाइम करते हैं, बट उस समय जो हेल्प नीड, जैसे बोलते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, उस समय उसको सबसे ज़्यादा हेल्प ज़रूरत होती है। तो उस समय अगर उसको वो तिनका ही मिल जाता है तो वो उसके लिए एकदम लाइफ सेविंग हो जाता है ना। क्यों? वो बेचारा, उसका नाम क्या था, जैक था ना टाइटैनिक में, हाँ, वो नहीं बच पाया क्योंकि उसको वो सहारा नहीं मिला। उसको जो सहारा मिला उसने उसको रोज पे बैठा दिया। आई डोंट रिमेम्बर दैट सीन। उसको कुछ ना कुछ, कोई ना कोई और सपोर्ट मिल जाता तो वो भी बच जाता, बट उसको नहीं मिला, और रोज के लिए वही वो सहारा था। या तो ऐसे ही हमारे लाइफ में आप बोले नहीं जैक जैसा काश होता, नहीं नहीं थे, लेकिन है, हर जन के लाइफ में वो हेल्प, वो सपोर्ट है। ओके, एंड वो उस समटाइम्स वो कह रहे हैं जब इतना चैलेंजिंग होता है, दूसरा पर्सन आके हमारे लाइफ का रास्ता बदल देता है, ऑल्टर्स द कोर्स ऑफ आवर लाइफ, या उनके एनकरेजमेंट, उनके गाइडेंस से हमारा जीवन ही बदल देता है। कैसे? इट कुड बी समवन कि बेबी आपका बहुत मन था, मे बी
कॉमर्स लेने का, सब फ्रेंड्स कॉमर्स ले रहे थे स्कूल में, ठीक है? आपका मन था नहीं नहीं कॉमर्स लेंगे, तो आपका मन नहीं है कॉमर्स लेने का, बट आप इसलिए ले रहे हो क्योंकि सब फ्रेंड्स दे रहे हैं। आपको अच्छा लगता है लिटरेचर, आपको पोएम अच्छी लगती है, आपको आर्ट अच्छा लगता है, बट आप नहीं ले रहे थे बिकॉज आपका अंदर अंदर से मन था, बट यू आर नॉट टेकिंग बिकॉज योर फ्रेंड्स आर नॉट टेकिंग। एंड जनरली आर्ट्स इज सपोज टू बी ना कि ना थोड़े वहाँ पे पढ़ाई कम वाले लोग जाते हैं, ऐसा अगर नॉर्म है, और आप बहुत अच्छे हो बट यू डोंट वांट टू गो, यू डोंट वांट टू बी अवे फ्रॉम योर फ्रेंड्स, and someone told you you will excel in arts, take up arts, okay, or follow your passion for writing and literature and writing novels, हाँ, and आपने वो path choose कर लिया, ठीक है? उस समय मे बी इट वॉज अ टीचर, मे बी इट वॉज योर कजन, मे बी इट वॉज योर आंट और अंकल, और आपने आर्ट्स चूज कर लिया क्लास 11 में, एंड यू आर डूइंग वंडरफुल। हाँ, उस समय आप अपने लाइफ में आप ऑन हो, ठीक है, यू आर हैप्पी, यू हैव मेड न्यू फ्रेंड्स, और मे बी यू आर कंटिन्यूइंग विद योर ओल्ड फ्रेंड्स ऑल्सो, बट आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी हैड यू टेकन अप कॉमर्स एंड बीन इन द क्या बोलते हैं उसको, चक्की ऑफ CS कॉमर्स अकाउंट्स, आप उसमें खुश नहीं हो, और आपका पैशन है, जैसे 3 इडियट्स वाला था ना कि उसका पैशन है फोटोग्राफी, बट वो बन रहा है इंजीनियर। अगर उसको आमिर खान ने सही गाइड नहीं किया होता तो वो क्या करता? ऐसे ही लाइफ में मे बी आपको जिसने इस तरीके से गाइड किया, उसने ही तो आपके लाइफ का कोर्स बदला। यू आर हैप्पियर फॉलोइंग योर पैशन, यू आर हैप्पियर राइटिंग लिटरेचर, मे बी राइटिंग फॉर द पेपर और सम पीरियोडिकल्स, एंड यू आर वेरी हैप्पी। आपको आज मौका मिल रहा है उस पर्सन को थैंक यू करने का जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा। आपने सोचा अरे उसने बोला, लेकिन करी तो सारी मेहनत हमने, लेकिन उसने उस समय आपको गाइड किया और सपोर्ट किया। तो आज का जो चैप्टर है वो उस टाइप के पर्सन को ढूंढने का है जिसको कभी तक आपने याद भी नहीं होगा, मे बी आपको, ओके, इट कुड बी अ टीचर, इट कुड बी मे बी अ करियर काउंसलर, मे बी अ सीनियर इन स्कूल, या और मे बी सम कजन। वो कौन था, आपको उसको ढूंढना है और आज आपको उसको थैंक यू करना है। बहुत सारे ऑप्शन हम लोग आज पढ़ेंगे, और ये चैप्टर इसलिए हमने आपको अभी एग्जाम्पल इसलिए दिया कि वाइल वी आर रीडिंग, अगर आपके मन में हो सकता है आज अभी चैप्टर पढ़ते पढ़ते ही यस कि हाँ ऐसा था, सो देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, इट कुड बी सम, सो लेट्स रीड। अब बुक में और भी रोडा बने हमको बताया है, और हमको उस समय उसका इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आता है, ठीक है? उस समय लगता है कि हाँ नॉर्मल बातचीत की थी, आइडिया तो मेरा क्लिक किया, फॉलो तो हमने किया, ऐसे तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन जब उस इंसान ने कहा और आपने उसको सोचा उसके बारे में, ठीक है, तो बीज किसने डाला? उस इंसान ने, उस पर्सन ने। तो उसको आज हमको थैंक यू करना है। क्यों? क्योंकि उसने हमारी लाइफ चेंज कर दी, है ना? अगर आप वो पाथ पे चले जाते तो लाइफ डिफरेंट टाइप की होती, मे बी नॉट हैप्पियर, या आज आप बहुत खुश हो, आप अपने मन का काम कर रहे हो, यू आर अर्निंग मोर, यू आर हैप्पियर। सो आज हमको उस पर्सन के बारे में थैंक यू करना है। या प्लीज कंटिन्यू। सॉरी, यस पल्लवी जी। या So sorry. Yes. The person may have been a teacher or coach, an uncle, aunt, sibling, grandparents, or any family member. They may have been a doctor, nurse, or best friend. They may have been the person who introduced you your current partner or to a particular interest that become one of your greatest passions. Maybe they were someone you didn't even know and they appeared in your life very briefly, performing a random act of kindness that touched you to the core. या तो इन्होंने इतने सारे हमको एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे कि आपका कोई अंकल हो सकता है, आंट हो सकता है, टीचर हो सकती है, कोच हो सकता है, हाँ, कि मे बी आप सोचो आपको स्कूल में ये क्यों उस समय होता है, बिकॉज हमको उतने ही पास्ट में जाना है, ठीक है? आप बोलोगे किसको याद है छोटे में कौन सी टीचर थी, कौन सा कोच था? नहीं, उन्हीं के उतने पास्ट में जाके ढूंढ के आपको वो पर्सन को ढूंढना है, ओके? और एक नहीं, हमको 3 को ढूंढना है। तो आप जब पढ़ रहे हो तो आपको वो सोचना है कि कौन है वो। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो आउटसाइडर हो, इट कुड इवन बी योर मॉम, योर डैड, योर फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, योर हस्बैंड, योर सिस्टर, इट कैन बी एनीवन जिसने आपको सपोर्ट किया, आपको एनकरेज किया। मे बी आपका कोई ब्रेकअप हो गया एंड आप बहुत ही सैड थे, हाँ, किसको बोलो आपको पता ही नहीं, मम्मी पापा को बोलो तो और डांट पड़ेगी, मे बी स्कूल ही जाना बंद हो जाए, यस, तो आपने किसी के संग शेयर किया, उसने आपको गाइड किया, हेल्प किया, टोल्ड यू टू मूव ऑन, इट कुड बी समवन लाइक दैट। या मे बी आपका आज बेबी नहीं, मे बी आज आपका कोई बेटा या बेटी हो, आप बहुत लो फील कर रहे हो दैट किड्स हैव ग्रोन अप, दे हैव मूव्ड ऑन विद देयर लाइफ, उसने आपको एनकरेज किया कि नहीं, टेक अप अ पैशन, follow your heart, do something, it could be even that,
या आप देखिए किसने आपको ऐसे हेल्प किया है, ओके, आज उसको थैंक यू करना है आपको। इट कैन बी, आप बोलो नहीं इतना भी कुछ क्रिटिकल नहीं, बस नॉर्मल हैप्पी लाइफ चल रही है तो भी मे बी यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन कुकिंग, पेंटिंग, डांसिंग, वो आपको किसने सिखाया, या आप उसमें आज बहुत खुश हो, दैट इज योर हॉबी एंड यू आर अर्निंग इन दैट, इट कैन बी समथिंग लाइक दैट। सो लेट्स रीड। Yes. My grandmother gave me my love for books, cooking, and the countryside. By sharing her love of those things with me, all of them affected and changed the course of my life. Cooking became a passion of mine for over 20 years. My love of books eventually led to me becoming a writer, and my love of the countryside has influenced where I have lived throughout my life. या तो वो अपनी ग्रैंड मदर का एग्जाम्पल दे रही हैं, तो आप भी देखिए क्या ऐसा कोई जन है, मे बी आपके कोई फेवरेट भगवान जी हैं, हाँ, और आपको उनसे फर्स्ट कोई आपकी आंटी ने इंट्रोड्यूस कराया, वही आपको मे बी साईं बाबा का मंदिर लेके गई, उन्हीं ने, आपने देखा कि हाँ वो उनकी पूजा करती हैं, आपका भी मन लग गया, एंड यू आर स्टिल फॉलोइंग दैट, आपको अभी भी उनमें श्रद्धा है। इट कैन बी समवन लाइक दैट कि और कोई नहीं करता है घर में, आप करते हो बिकॉज समवन इंट्रोड्यूस्ड यू टू दैट टेम्पल एंड यू फेल इन लव विद दैट भगवान जी एंड आप वो कर रहे हो। It can be that, yeah. अभी हम बताते हैं like when I was in class 11 I had taken up science, physics, chemistry, bio, maths चारों थे, तो when I wanted to do medicine, तो क्या हुआ, पढ़ते पढ़ते आपको लगा नहीं बहुत पढ़ना पड़ेगा, इतना पढ़ना पड़ेगा, 15 साल पढ़ना पड़ेगा, तब जाके पैसे कमाएंगे, वो बूढ़े हो जाएंगे, ऐसा सोचा हमने। हाँ, मे बी वो नहीं थी मेरी कॉलिंग, बट उस समय हमने ऐसे ही सोचा था कि इसीलिए नहीं, बहुत टफ है, एग्जाम भी दिया ना, तो फाइनली 12th के बाद सब कोचिंग वोचिंग सब की, बोले छोड़ो, मैंने किया, मन भी नहीं है, हाँ, उतना कुछ अच्छा हो भी नहीं रहा था वैसे, लेकिन किया ही नहीं, कॉमर्स ज्वाइन कर लिया 12th के बाद कॉलेज में। तो हमने बोला अब सी एस तो ऐसे ही मेरा अकाउंट्स बहुत अच्छा है, ओके, तो अब क्या करेंगे अकाउंट्स करके। तो मेरी फ्रेंड बोली मिक्की कि प्रिया चलो हम लोग दोनों इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। हमने बोला ठीक है चलो कर लेते हैं, कुछ डिफरेंट रहेगा। एंड ट्रस्ट मी, उसकी तो शादी हो गई, और she was the one who introduced me to interior designing and I still thank her for that because उसमें मेरे को समझ में आया कि yes that is my passion and I'm still continuing। हाँ, अगर उसने मेरे को इंटीरियर डिज़ाइनिंग नहीं कराया होता तो अभी हम शायद CS में कोशिश कर रहे होते, पता नहीं कितने बार पास होते, कितने बार फेल होते, भगवान जाने। हाँ, क्योंकि वो मेरी नहीं थी कॉलिंग, मेरी कॉलिंग शायद इंटीरियर डिज़ाइनिंग ही थी। हाँ, तो आई स्टिल थैंक हर, जब ये सेशन आता है मैं उसको याद करती हूँ। तो आप देखो आपके लाइफ में, और उस समय नहीं लगा था उसने, तो वो भी तो कर रही, हम भी तो करें, उसमें थैंक यू की क्या बात है। अगर हम ऐसे सोचते तो हम यही सोचते, फ्रेंड्स मिलके तो कितनी सारी चीज़ें करती हैं, बट डूइंग दैट कोर्स विद हर ऑल्टर्ड माई लाइफ। आज अगर हमने वो कोर्स नहीं किया होता तो पता नहीं हम कहाँ होते। मेरे पास उतना वो टेम्परामेंट है ही नहीं कि हम ऑफिस में बैठ के 9 to 5 अपने बॉस की बात सुनते, मेरा टेम्परामेंट है ही नहीं ऐसा, तो पता नहीं क्या होता। बार बार मे बी आई डोंट इवन वांट टू थिंक ऑफ दैट लाइफ। ऐसा होता है ना, अपन सोचते ऐसा नहीं होता तो आज हम कहाँ होते। ऐसा कितनी बार होता है ना, अगर मैंने वो क्लास कर लिया होता, या वो कोर्स कर लिया होता, या उस लड़के से शादी कर ली होती, हाँ, या उस समय कुछ और कर लिया होता तो कहाँ होते, ऐसा सोचते हैं ना अपन। तो उस बात पे भी नहीं जाना है मेरे को। आई एम सो हैप्पी डूइंग द थिंग्स दैट आई एम डूइंग नाउ। तो ऐसा कोई जन ढूंढ लिया आपके, मे बी पल्लवी जी कैन थिंक, किसने बोला कि हाँ टीचिंग करना चाहिए, स्कूल में जाना चाहिए। हाँ, उस समय आपने नहीं किया होगा उनको थैंक यू, बट नाउ यू आर सो हैप्पी, यस दैट पर्सन इज सो क्रूशल इन माई लाइफ इन चेंजिंग डिसीजंस। उसको आज थैंक यू करना है आपको अपने लाइफ में ढूंढ के। ओके, सो लेट्स रीड। Yes. My grandmother also disciplined me with a steel hand to say thank you. At the time, I thought she was just teaching me to be polite. It was only later in my life I realized that teaching me to say the magic words was the greatest gift my grandmother ever gave me. She is not alive anymore, but I continue to be grateful to her for the huge influence she had on the course of my life. Thank you, Grandma. या तो आप देखिए रोंडा बर्न अपने ग्रैंड माँ के बारे में उन्होंने कितनी सारी चीज़ें बताई। आप देखिए हमको भी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स अच्छे लगते हैं, बट आपने कभी ऐसा सोचा कि यस कुकिंग में आपको इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि आपको मे बी आपकी नानी ने या दादी ने या बुआ ने, मौसी ने, मम्मा ने सिखाई है, इसलिए आपको शायद इंटरेस्ट है। या मे बी आपको मैथ्स में इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि किसी ने आपको इतने अच्छे से गाइड किया छोटे में, या मे बी आपको आर्ट में इसलिए इंटरेस्ट आया क्योंकि आप उनको देखते थे आर्ट करते हुए, या तो उन्होंने बताया कि इतने सारी चीज़ें उन्होंने अपनी दादी से या नानी से सीखी। ग्रैंड मदर है तो pता नहीं कौन सी हो सकती हैं ये, यस। एंड शी इज़ सेइंग कि उन्होंने थैंक यू भी उनको सिखाया।
उस समय शायद उनको जस्ट इसलिए सिखा रही होंगी कि पोलाइट होना है, हम लोग भी सिखाते हैं अपने बच्चों को, बट उनको बाद में यही समझ में आया कि उनकी मम्मा ने जो उनको डिसिप्लिन किया था, ये कितना ज़्यादा लाइफ ऑल्टरिंग मोमेंट होता है, ये कितना ज़्यादा लाइफ ऑल्टरिंग उनके लाइफ में। तो जब उन्होंने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू किया तभी उनके लाइफ में सारे मैजिक्स आने स्टार्ट हुए, हमने पढ़ा था उनकी लाइफ स्टोरी में पहले। तो शी इज़ एक्चुअली टेलिंग थैंक यू टू हर ग्रैंड माँ। सो टुडे इज़ द डे व्हेन वी हैव टू थिंक ऑफ दोज पीपल इन आवर लाइफ एंड गिव देम आवर ग्रैटिट्यूड। ओके, सो लेट्स रीड। Today, you are going to think about the magical people who have impacted your life. Find a quiet place alone sometime during the day today. Sit down and think of 3 extraordinary people who have made a difference in your life. Once you have your 3 people, work with one person at a time and talk out loud to each person as though they were present, telling him or her the reason why you are grateful to them and how they affected the course of your life. या तो हमको क्या करना है, सबसे पहले एक शांत और एकांत जगह में बैठ के आपको रिफ्लेक्ट करना है, ठीक है। ये नहीं कि अरे अभी सोच लिया 3, हाँ हाँ ये है, चलो 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 कर लेते हैं, नहीं ऐसे नहीं करना है। हाँ, आपको एक्चुअल में शांति से सोचना है, आपको बैक जाके पास्ट में जाके ढूंढ के निकालना है। वो हमने ये पढ़ा था ना, जितना नीचे जाते हैं समुद्र में तभी आपको क्या मिलता है, मोती मिलता है, ट्रेजर मिलता है, ऑयल मिलता है, जो भी चाहिए वो आपको वहाँ फ्लोटिंग करता हुआ कुछ नहीं मिलता है। या तो हमको भी हमारे पास्ट में जाके वो ढूंढ के लाना है, वो मोती, वो हीरे, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल जिन्होंने हमारे लाइफ में वो चेंजेस किए हैं, जिन पीपल हु हैव मेड अ डिफरेंस इन आवर लाइफ, उनके बारे में आपको करना है। और ऐसे 3 लोग ढूंढने हैं और क्या करना है, आपको इमेजिन करना है अकेले में। ये नहीं कि कि बच्चे दौड़ा भागी कर रहे हैं और आप बैठे बैठे यहाँ पे कुछ ये वाला टास्क कर रहे हो, नहीं। ये प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, आपको अकेले बैठना है, इमेजिन करना है कि वो एक पर्सन आपके सामने चेयर पे बैठा हुआ है और आप उसको थैंक यू बोल रहे हो, ठीक है। आपको एक्चुअल में, अगर आपके लाइफ में वो पर्सन है अभी, आपको उसको एक्चुअल में चेयर पे बैठा के नहीं बोलना है, ठीक है। वो नहीं बोलना है, क्योंकि हो सकता है आप बोलो तुमने तो मुझे 500 रुपये दिए थे, बोले 500, मैंने तुमको 5000 दिए थे, तो बस हो गया बंटा डाल, ठीक है। उसको नहीं बुला के आपको बैठा के नहीं बोलना है, आपको इमेजिन करना है कि वो पर्सन बैठा हुआ है एंड यू हैव टू टॉक आउट लाउड। या आपको क्या करना है, एक संग ये तीनों लोगों को बुलाना है, मतलब वन आफ्टर द अदर। इट शुड नॉट बी कि आपको अभी 10 मिनट मिले हैं तो आपने एक जन से बात कर ली, फिर लंच कर लिया, फिर लंच के बाद दूसरे जन को बुला लिया और सेशन के पहले तीसरे जन को बुला लिया, नहीं। आपको एक संग इकट्ठा 3 एक के बाद एक, जैसे डॉक्टर पेशेंट को बुलाता है ना, एक के बाद एक, हाँ वैसे बुलाना है और आपको अपने मन की ये बात उनको बोलनी है और थैंक यू बोलना है और ये बताना है कि कैसे उन्होंने आपके लाइफ में वो हैप्पीनेस, वो चेंजेस, वो पॉजिटिविटी लेके आई है। ओके, या सो प्लीज कंटिन्यू। Make sure you do this magical practice with all 3 people in the one session, because it will take your feeling of gratitude to a far deeper level. If you split up this magical practice throughout the day, you will not feel the same depth of gratitude nor receive the magical result. या तो उन्होंने यही कहा है कि आपको तभी इसका रिजल्ट मिलेगा जब आप तीनों जन को एक संग करोगे। क्या होगा, जब आप एक संग तीनों जन को कर रहे होगे प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड वाला, तो आपको और ज़्यादा फीलिंग आएगी, ठीक है। यू विल रियली फील वेरी नाइस। आप देखिएगा कितना अच्छा लगता है ये प्रैक्टिस करके। जैसे आपको सुबह एक संग 10 ब्लेसिंग लिखने को बोला गया है, वो इसीलिए बोला गया है क्योंकि आप एक संग जब 10 लिखोगे तो उसका फीलिंग अलग आता है। और आपने लिखा चलो अभी 1 ही मिनट है, चलो 1 ही लिख देते हैं, फिर आप 2 मिनट आए किचन में सब कुछ करके आए, फिर दूसरी ब्लेसिंग लिख दी, नहीं। आप बोलो लिखी तो 10 है, नहीं। जब आप एक संग लिखते हो तो वो फीलिंग एक कंटिन्यूएशन में रहती है, ठीक है। तो वैसे ही आपको टाइम निकाल के एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स आप निकाल के रखिएगा। आप उस इंसान को एटलीस्ट 5 मिनट तो बोलोगे, है ना। आपका मन है, आप टाइमर लगाइए या जब तक, कोई ज़रूरी भी नहीं है, बट एटलीस्ट 5 मिनट तो बोलिए, हाँ, कि आपके लाइफ में क्या क्या अमेजिंग चीज़ें आई हैं आफ्टर दैट पर्सन्स हेल्प, गाइड और सपोर्ट। अगर आपको लगता है नहीं हम बोल पाएंगे एकदम से, यू कैन राइट इट डाउन एंड देन यू हैव टू रीड इट आउट लाउड। ओके, आप लेटर की तरह लिख सकते हो कि डियर सोनिया, ओके, डियर पल्लवी, जो भी है आपका, राहुल, प्रेम, जो भी है, आपने नाम लिखा, डियर दादी, नानी, मामा, जो भी आपको लिखना है, आपने नाम लिखा लेटर की तरह। फिर आपको इमेजिन करना है वो आ गया आपके सामने और आपको जोर से बोलना है। इफ़ यू वांट यू कैन इवन लुक एट द फोटोग्राफ टू गेट अ बेटर थिंग। आप समझ गए सबको ही प्रैक्टिस। दिस इज द सिंपल प्रैक्टिस दैट वी हैव टू डू।
Yeah, please read. Yes. Here's an example of Hmm. Oh, sorry. what you might say. Sarah, I want to thank you for the time that you encouraged me to follow my heart. I was lost and confused that day, and your words Hmm. touched me and lifted me out of despair. Because of what you said, I found the courage to follow my dream and I moved to France to work as an apprentice chef. I am living my dream and I couldn't be happier, all because of what you said to me that day. Thank you, Sarah. यस, तो आपने देखा उन्होंने कैसे थैंक यू किया है और क्या बोला है। ओके, उन्होंने लेटर की तरह ही बोला है। हम लोग भी लेटर में ऐसे ही लिखते हैं ना, डियर दिस। ओके, तो आपको इसी तरह बोलना है कि यस माय डार्लिंग। ये आपको, अगर आपको लगता है कि वो इतना ज़्यादा लव्ड वन है, आप ऐसे बोल सकते हो। आपका कोई टीचर था, सर मैडम, इस तरीके से आपको बोलना है, आप वैसे बोल सकते हो। जिसमें आपको फीलिंग आए, आपको वैसे विद रीजंस ये बात बोलनी है। या प्लीज कंटिन्यू। It's very important that you say the reasons why you are grateful, and you can't say too much. Instead, the more you say and the more you feel, the more amazing the results. You will see the magic explode into your life from doing this practice. It numbers among the most powerful acts of gratitude you can ever perform. या If you are sorry, या सॉरी, या प्लीज रीड। if you are not in a position to talk out loud, then you can write down your words to each person and address them as though you are writing a letter. या तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम रीज़न दें, ठीक है? क्योंकि रीज़न ना जब हम देते हैं तो हमारी फीलिंग्स और अच्छी आती हैं, है ना? आपने देखा ना कि अरे जैसे उन्होंने बोला है, आप जब करोगे ना ये प्रैक्टिस तभी आपको ये समझ में आएगा, ओके? कि रीज़न देने से कितना अच्छा लगता है। उस समय लगता है कि अरे नहीं, इतनी सारी और बातें हैं, हाँ? और हम सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं। तो आप देखोगे अगर आप नहीं लिख रहे हो तो आप बहुत सारी बातें बोलोगे, हाँ? मे बी आप बहुत इमोशनल हो जाओगे। तो यू हैव टू एक्सपीरियंस दिस इज सच अ पावरफुल प्रैक्टिस एंड शी इज टेलिंग इट कि जितना ज़्यादा आप बोलोगे, जितना ज़्यादा आप फील करोगे, उतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। कैसे आएंगे रिजल्ट्स? आप जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे तो क्या होएगा? आप और स्ट्रांगली अपनी ड्रीम्स, अपनी डिजायर्स अपने पास बुलाओगे, आपका पावर और बढ़ता जाएगा। आपने देखा है कई जन जो बहुत शांत दिखते हैं या आपको लगता है नहीं वो बहुत पूजा करते हैं इसलिए उनके चेहरे पे एक वो ग्लो रहती है, ऐसा लगता है उनके पीछे एक ठो ऑरा है, वो तेज है उनके अंदर। तो वो जो पावर आता है वो कैसे आता है? वो इसी प्योरनेस से, इसी ग्रैटिट्यूड से, इसी बिलीफ से आता है। तो आप जितना ज़्यादा फीलिंग्स एंड ग्रैटिट्यूड के संग करोगे उतना ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट, इमीडिएट रिजल्ट कैसे होंगे कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। दैट इज़ द फर्स्ट इमीडिएट रिजल्ट कि यू विल फील वेरी नाइस, वेरी लाइट एंड वेरी इमोशनल। ओके, और आप सोचोगे अरे इतने सारे लोग हैं मेरे को, मैंने तो अभी सिर्फ 3 बोले हैं। इस टाइप के तो कितने सारे और लोग थे। उस फ्रेंड ने जो मेरे को एग्जाम में पेपर दिखाया था, वो भी तो कितनी इंपॉर्टेंट थी, वरना तो मैं शायद फेल ही हो जाती। हाँ, उसने जो मेरे को सपोर्ट किया था स्कूल में जब मैं भी मेरे पेरेंट्स के संग मेरा कुछ इशू चल रहा था। सो मेनी थिंग्स इन योर लाइफ, आपको इतने सारे लोग और याद आ जाएंगे। ओके, जब मेरी फ्रेंड मेरी सिस्टर से लड़ाई हुई थी तो मेरे भी भाई ने उस समय मेरे को सपोर्ट किया था। सो मेनी रीजंस एंड पीपल यू विल गेट इन योर लाइफ लाइक दिस। उन सबको आपको थैंक यू करना होगा फिर, ठीक है? लाइक इट विल कम टू यू, यू विल वांट टू थैंक देम, यू विल वांट टू बी ग्रेटफुल फॉर देम। या एंड ये प्रैक्टिस रॉन्डा बर्न कह रही हैं आपके लाइफ में और मैजिक एक्सप्लोड हो जाएगा। हाँ, माने आप जो चाह रहे हो, जो सोच रहे हो वो आता चला जाएगा, ठीक है? एंड दैट इज वाई इट शी इज टेलिंग इट नंबर्स अमंग द मोस्ट पावरफुल एक्ट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड यू कैन एवर परफॉर्म। जो मैजिक डस्ट ये सब आप कर रहे हो ना, उससे ज़्यादा पावरफुल ये प्रैक्टिस है। ओके, बिकॉज आप क्यों कर रहे हो उसको? आप इसके लिए कर रहे हो क्योंकि उन्होंने आपको कब हेल्प की थी, कब सपोर्ट किया था, और आपको पता ही नहीं चला कि उन्होंने इतना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया हुआ है आपके लाइफ में। ओके, yes, please read. When you have completed this practice, you will feel a huge difference in the way that you feel. The evidence of gratitude's power working is always that first and foremost, it makes you happy. The secondary evidence of gratitude's power is that you attract wonderful things. And as if all of that wasn't enough, the happiness you feel after practicing gratitude also attracts more wonderful things, which will make you even happier. That's the magic of life, and that's the magical power of gratitude.
या तो उन्होंने यही कहा, जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो इमीडिएटली उसके आपको करते ही बहुत अच्छा फील होगा, बहुत लाइटनेस फील होगी एंड बहुत हैप्पी फील करोगे। एंड जब आप हैप्पी फील करोगे तो सेकेंडरी एविडेंस ये जो कह रहे हैं ये क्या है, आपके लाइफ में और अच्छी चीजें आएंगी। यू आर अट्रैक्टिंग वंडरफुल थिंग्स, मतलब जो आप सोच रहे हो, जो आप चाहते हो, वही तो हमारे लिए वंडरफुल हुई ना, या मे बी सरप्राइजिंगली न्यू न्यू चीजें, अच्छी अच्छी चीजें होंगी। वो क्यों होगा? जब आप हैप्पी हैं तो आप कैसी चीजें अट्रैक्ट करेंगे? Happy. ऐसी ही चीजें आप अट्रैक्ट करेंगे जो आपको और हैप्पी करेंगी, है ना? तो क्या है, आप हैप्पी चीजें अट्रैक्ट कर रहे हो, आप हैप्पी और हैप्पी और ग्रेटफुल होगे, हैप्पी चीजें आएंगी। ऑफ कोर्स आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप और ग्रेटफुल होगे, हाँ, और ग्रेटफुल होंगे तो और चीजें आएंगी, आप और हैप्पी होगे। तो क्या होगा फिर, ये हैप्पी एंड ग्रैटिट्यूड का साइकिल फिर चलता रहेगा। एंड दैट्स द मैजिक ऑफ लाइफ, कि जितना ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना ज्यादा आप हैप्पी होंगे, ठीक है? तो आप और ग्रेटफुल होंगे तो और हैप्पी होंगे। सो दिस इज अ वंडरफुल प्रैक्टिस। आप प्लीज प्लीज एकदम टाइम निकाल के, आपको जब टाइम मिले, इसमें कुछ नहीं है कि आपको सुबह सुबह करना है। सुबह सुबह करने से क्या होता है ना, सुबह मतलब लाइक व्हेन एवर यू गेट टाइम, सुबह करने से आपका दिन बहुत अच्छा जाने लगता है। ओके, बिकॉज यू हैव डन दिस प्रैक्टिस एंड देन यू आर द होल डे यू आर इन दिस, जैसे बोलते हैं ना, इन दैट जोन, इन दैट पॉजिटिविटी जोन। आप और लोगों को याद करोगे कि हाँ, लाइक व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू ऑल्सो, तो भी मेरे को और याद आ रहा है जिनको बारे में हमने पिछली बार नहीं किया है, थैंक यू। ओके, और हर बार ये करते हैं तो कुछ कुछ टीचर्स आए, कुछ आए, स्कूल के कितने सारे जन्म मेरे मन में आ रहे हैं। एक दो आंटी भी आ गई मेरी मन, लाइक मौसी बुआ टाइप्स लोग भी आ गए हैं, उनको भी मेरे को थैंक यू करने का मन कर रहा है। ओके, सो लेट्स रीड एंड डू दिस वंडरफुल प्रैक्टिस टुमारो। Yes. Magic practice number 12. Magical people who made a difference. 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Find a quiet place alone sometime during today and make a list of 3 people who made a difference in your life. 3. Work through the list one person at a time, and while talking out loud, tell each person the reason why you are grateful for them and exactly how they affected the course of your life. 4. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best things that happened during the day. Yeah, so thank you, Pallavi ji. Thank you for reading so nicely for all So of us. much. Yeah, it was so nice and soothing, बहुत अच्छा लगा आपका रीडिंग सुन के। Thank you. Thank you. Yeah. So here something that I want to add in the practice. देखिए, रॉन्डा वन कह रही हैं कि आपको जोर से बोलना है, ओके? इसके पीछे एक रीजन है। आई हैड डन इट द फर्स्ट टाइम आई हैड जस्ट रिटन, मैंने जोर से नहीं पढ़ा था, ओके? एकदम शुरू की बात बता रहे हैं। बट उसके बाद जब सेशंस कर रहे हैं तो जो कभी कभी नहीं, अक्सर जो बोलते हैं वो करना भी तो चाहिए ना, ठीक है? तो आई डिड दैट। जब आप जोर से बोलते हो ना, तो अपनी आवाज़ जब कान में जा रही होती है ना, तो यू कांट लाई। लिखने में आप थोड़ा सा कुछ इधर उधर कर भी सकते हो। व्हेन यू आर सेइंग इट, ऑटोमेटिक फीलिंग आ जाएगी। यू विल नॉट रीड इट ना, सारा आई वांट टू थैंक यू फॉर द टाइम दैट यू एनकरेज मी टू फॉलो माय हार्ट, आई वाज लॉस्ट एंड कंफ्यूज दैट डे। आप ऐसे नहीं पढ़ोगे ना, हाँ? जब आप लिख के उसको खुद पढ़ रहे हो, आपने लिखा है, कोई और नहीं सुन रहा है, तो आपकी फीलिंग उसके अंदर ऑटोमेटिक आएगी। ओके, तो इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, यू मस्ट डू दैट। एंड जोर से पढ़ने से एक अलग ही बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। अगर आपको ब्लेसिंग्स भी जोर से पढ़ने का एनवायरनमेंट मिलता है, तो अपनी खुद की ब्लेसिंग्स भी जब आप पढ़ते हो ना दोबारा, तो जोर से पढ़ो तो और अच्छा लगता है। तो आप उसको और फीलिंग डालते हैं। जैसे नहीं, कई एक्टर्स होते हैं, क्यों वो इतने अच्छे हो जाते हैं? क्योंकि वो जो डायलॉग बोलते हैं, ऐसा लगता है ना एकदम अंदर जान लगा के अंदर दिल से बोल रहे हैं, है ना? तभी तो वो इतने अच्छे एक्टर्स हो जाते हैं। और कुछ होते हैं जो एकदम सिंपल ऐसी खाली लाइन पढ़ देते हैं, हाँ, और वो जितने भी अच्छे हों, दे डोंट सक्सीड। क्यों? बिकॉज उनकी वो फीलिंग नहीं पता चल रही होती। तो व्हेन यू आर रीडिंग एंड सेइंग इट आउट लाउड, आपकी फीलिंग्स उसके अंदर ऑटोमेटिक आएगी। ओके, एंड जब फीलिंग ज़्यादा आएगी तो ग्रैटिट्यूड और होएगा एंड और मैजिक आएगा आपकी लाइफ में। ओके, सो होप एवरीवन इज क्लियर अबाउट व्हाट हैज़ टू बी डन। और मैजिक ब्लेसिंग्स आपको तो करना ही है। सो थैंक यू एवरीवन। So let's do the gratitude and then we'll take some questions only if you have done the practices, okay? So let's join our hands, close our eyes and pay gratitude to the wonderful Almighty. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, dear God, for filling my life with so many people who have been kind, helpful, supportive.
Thank you for all the help and guidance I have received since my childhood. A special thanks to our parents who are always ready to guide us and help us, who are always guiding us, for showing us the correct path. Thank you, Rhonda Byrne, for guiding us on this path of journey. Thank you for making it so simple and easy for us to follow it every day. Thank you, God, for all your help and all your shine. Thank you, thank you, thank you. Thank you, everyone. Yes, thank you, everyone. Yeah. I just wanted to share Thank you. yesterday's experience Yeah. that after my this program was there. जब वो प्रोग्राम हुआ तो जिन्होंने मुझे हेल्प की थी, ऑफिस पर्सन्स है, मेड है, या फिर आया बाई है, या फिर जो भी काका, वॉचमैन, चाचा, सबको मैंने कैडबरी दे के लाइक अप्रिशिएट किया था कि यस यू हेल्प्ड एंड बिकॉज ऑफ यू द फंक्शन वाज फैंटास्टिक. आज तक मतलब चलो 2 ही दिन हुए बट स्टिल पल्लवी मिस आपको जो भी काम है ना हमको बोल दो, बेझिझक बोल देना एवरी टाइम. पल्लवी मिस आप इतना अच्छे से समझाते हो ना, वो टीचर बहुत चिल्लाती है, इट्स ओके, आपको जो भी चाहिए ना आप हमसे मांग लो, वी आर हियर, लाइक दे आर ऑन द टोज फॉर अस. Okay, wow, very nice, very nice. And See, just like, yesterday magic dust also I did on them. Day before yesterday I appreciated them, just I gave them a Cadbury, but they felt so happy since long how they are working in the school, but nobody appreciated. चलो आपका ये काम है, आपको करना है. Everyone was saying अरे this is our duty, we have to do, but this is my style to appreciate you. So they accepted and they were so happy. I felt so happy for that. Okay. Thank you. Wow, thank you, Pallavi ji. You see, whatever you are doing is coming back to you and will come back to you multiple times, okay? Because you are doing it with so much, love and affection also. So thank you, thank you. Yeah. So yes, how was your day? The magical morning? Fantastic. Fantastic, excellent. Yeah. So any question for today's practice? आपको क्या करना है, कैसे करना है? Okay. Yes. Yes, Jagriti. Good evening, ma'am. Yeah, good evening. I have a question about the today's practice. If I have like more than 3 people, so like in that case, I can do it. I can continue this practice further afterwards. हाँ, आफ्टरवर्ड्स मीन कल आपको 3 ही जन करने हैं. आप परसों उन और लोगों के बारे में कर सकते हो, ठीक है, बट कल सिर्फ 3 करने हैं. So like अगर 3 से ज्यादा है, like 5, 6, so the remaining 3 people I can do day after tomorrow. Yes. And those people who have brought a positive change in my life, I have to choose them. Yeah. Okay. And for health, sometimes I'm having some breakdown. So negative word is not allowed. So I'm trying to avoid it. So what to do in that case? If I want to resolve something. If you want to resolve something, first, like what you have to be just in gratitude. You can't resolve anything, okay? You have to just, not observe the negativity. Okay, you have to focus on the goodness in that. Like, what is the positive? Like, what can see? We'll not talk hypothetical. Like, what is the issue? Then I'll tell you. Yeah, that is better. I will not talk hypothetical. I don't know what I'm talking about. So, like, I am allowed to say what type of breakdown I have, right? No, first I'll tell you. First, you have to start collecting points. Those points can happen only when you are writing your blessings. And you have to tell me which practice you are having an issue with, okay, that you have not understood, okay. Then we'll talk about resolving some issues, because first we are understanding how to practice gratitude, then we'll talk about resolving breakdowns, or how we can use gratitude to resolve some challenges that you're facing. So can I ask my health related query? No, first you tell me what have you written in your dream about that breakdown. No, actually, I am facing some breakdown from last 2 or 3 days. Okay. No, first tell me, have you written about it in your dream? No, I did. It was 3 unexpected days. breakdown. Yeah. Suddenly it happened.
If you allow me, then I can say also. Acha, okay, say, yeah. Actually, in the evening, I was having some headache, then it went away. So that is okay. But from last 2 days, I am having some constipation. Like, so I don't know how to resolve. Sometimes it is And what getting you do resolved is by the simply, evening. nahi. Jagriti, are you serious? First tell me, are you serious? You are asking this question? Hmm? Mhm. Then without gratitude, like, कोणती I have मागवणार to आहे tell you, नॅचरल yeah, what ना you do is you just have water. And are you doing the magic ingredient practice? Have you done that practice? काय You've done blessings. Are you doing gratitude for your water and your food? No, I will do. I have not No, done. yes, so then you have to do it and then tell me, ki, I am doing gratitude for my water. It is not effective. What should I do? That is the kind of question I am expecting. I am not a doctor. Okay, you have to tell me I have done something. It is not now. It is not helping. What else can I do? Okay, I can tell you right now what all you should do, but I want you to do something first and tell me कि उसने help नहीं किया, अब क्या करें? ठीक है? That way. No, That is if I how will this do, it will session works. definitely help. I Yeah. have So done the practices before. yeah. So I will Okay. try and be regular. I think I've missed that class. It is done already. So you have a book with you? Yes, I have the book. Yeah. So what you do is right now you get your book, look at the chapters and see which day are we on today? Jagriti, what is 12th I think 10 days are over. 11. 10 days are over now. 11 So over what you do is when you come for the session, bring your book with you. Okay. See, I am doing this book, but I have not been practicing gratitude for more than, I've started practicing only for 1 year. I was a different person. Okay. So don't challenge me to get that person here. You're taking my patience to another level. Thank you, Bhagwanji, for giving me this patience. Yeah. So what you have to do is you have to bring your book, look at the chapter, do the practice, and then come back. So thank you, Jagriti. Yeah. Yes, Sorry, for this I ma'am. want to just talk to you one thing. Yes. कोई भी चीजें हमारे फेस पे हमारी नहीं होती. Hmm. Like I have heard somewhere like के जब हम लोग बहुत खुश होते हैं तो हैप्पी थिंग्स हम लोगों को कोई और पर्सन लाके देता है तो हम लोग बहुत हैप्पी हो जाते हैं. कोई अगर हम लोग चलते फिरते किसी ने हम पे गुस्सा कर दिया तो वो गुस्सा हमारे ऊपर आ जाता है एंड वी डू द सेम थिंग. So the thing is not ours. We are carrying somebody else's thing with us. Hmm. Okay. So we have to keep on doing gratitude. So we are in our own state. Hmm. Yes. And every time we will be positive. Yes. Yes. Thank you, Palviji. Yes. Thank you. This was needed for me also. Yeah. Thank you. Yes. Actually, you have explained something, but I am not getting it exactly. So Palviji, you can call her and explain her. Okay. Yeah. So yes. I was sharing. Yeah, Aditi ji. Thank you. Yeah. I have a very good sharing. In fact, yesterday I got a courier and जब मैं उस बंदे को पेमेंट कर रही थी, I had the name of that courier person in my जो ऐप आता है ना उसमें courier person का नाम था. And that person came to my place. I told him with a thank you with his name. Hmm. Thank you. आपने मेरा courier यहाँ पे पहुंचाया सौरभ जी. Thank you for that. And he was like, he was so happy after that I said him personally a thank you with his name. He was like, oh, and he was like, so smiling. So it made me smile so much that I could not explain it. It really made me feel very happy about it. Okay, wow, thank you. तो देखा आपने ऐसे बोला होगा तो आपको अच्छा लगा ना, आपने उसका नाम मुझे लेके अच्छा बोला लगा, तो उसने भी, उसको भी अच्छा लगा कि उसको मैंने उसके नाम से थैंक यू बोला. यस एक्चुअली गुड टिप. कोरियर गाइस का तो हमने नाम, आई डोंट थिंक उनको कभी हमने नाम लेके थैंक यू बोला होगा. थैंक यू. वेटर्स एंड वेट्रेस को डेफिनेटली बोलते ही हैं, अब तो ट्राई करते देख के कहते हैं, बट वेरी गुड टिप. आई विल कीप इट इन प्रैक्टिस. थैंक यू अदिति जी फॉर दिस. थैंक यू. या यस यस सोनिया. Uh,
I don't have any sharing or something, but I'm going through some challenge and I really need everyone present here. सबका मुझे blessings चाहिए, please. अभी बहुत serious. Oh, I will talk to you later. Hello. Hi. I will give you my booking reference number. Yes. So anyone else has a question or a sharing? I have a sharing. Yes. I have a person working at my place. She's 4 to 5 years elder to me. So before she came to my place for work, she never worked outside her house. So the best quality in her which I see, she sometimes she's getting irritated or angry, but she's very polite. She doesn't get angry or start shouting. She's very good in nature, and the best thing like which I can relate with magic book is that whenever we are giving her something or anything good happens, like literally 5 times a day she's saying the word thank you, although she doesn't know magic book. She has just studied till class 12 only. But that girl, she's so good. Every day she's saying thank you. At least 5 times I see her saying that magical word. So it gives me positivity that she is not that much literate, not so much fortunate like we are. She's domestic house, like domestic help, but she's having such a good nature. No, but what is the sharing? So I feel very much positive whenever I see her. I think that we don't say so much thank you at home. She's saying so many times. So we should learn from her No, that when we you should are saying we, say you are also. saying all of us present here or just who? The whole world? Like whom are you saying we? In general, No, we say it a is lot a of thank you, right? Everyone is saying a thing. lot of, I'm so sorry. I'm so sorry, Jagriti. I'm really sorry. Okay, yeah, please continue. Am you saying me? Yeah, I'm telling you, please continue. Oh, sorry. I am saying that I got a lesson from her that I should also do like that. I should also say thank you. So I wanted to share with you all that this person is very good and I get positivity from her. Like whenever I'm asking any question or sharing, so I get positivity from Magic Book. In the same way, I get positivity from her. Being a house help, she's We have got it. See, making me realize that. a sharing, I will just clarify what a sharing is. When you are saying sharing, it means for everyone, I'll just clarify a bit. A sharing means that we have been, anyone who is sharing has been practicing gratitude and has seen some, happy things or some positive things happening in return. Okay, that is a sharing. So Jagriti, you have started saying thank you more from this positive person in your house. You've started saying more thank you. Yes, I'm trying to say more, like not uh, recently I've thought that I will also do like this. Okay, I very good. also make it a point that I should say thank you. Okay, Sometimes we think, but we don't say okay, at home in day-to-day conversations. We don't use it. We write gratitude, but we don't say that much. okay, So I think we should say. okay. Thank you. Thank you. We will keep it in mind. And I'm sure you will also start being more grateful. Thank you. Yes. I've Yes. started with the blessings, and I feel there are many more things which I can add. Yeah. So keep You on had adding, mentioned. keep on writing. It will bring magic in your life and it will make you a positive person. Thank you. Yes. Yes. Harveshni, Yeah, Shweta, please. so yesterday I had went to a nearby hospital. एक छोटा सा normal test था. But Sunday, so we were not sure कितने बजे शायद timings और थी. So close by to our hospital, 9 बजे we went. And somehow the person said, नहीं आज तो Sunday है 10:30 बजे खुलेगा. और मैं रास्ते भर I had done this gratitude to the entire hospital जिसने land दिया, जो owner है सबको. And coincidentally, आई मीन वो उसने कहा कि 10 बजे से पहले तो स्टाफ आएगा नहीं. इट वाज अ बेसिक टेस्ट बट स्टाफ विल डू. बट समहाउ द लेडी फ्रॉम इनसाइड समबडी केम सेड एक काम करो, आप इमरजेंसी में बिलिंग करा दो, यहाँ तो अभी लोग आएंगे ना, देन विल सी सम.
And believe me, 9 बजे we were there. They said that 10:30 में कोई नहीं आएगा, और 10 बजे तक we had done our things and came back home. So Wow. and मैं तो उसके बाद फिर मैं तो आते रास्ते में भी वापस, because we need to thank again the entire chain. Yes, yes. And again क्योंकि संडे था, they said कि report will come at around 4. आप 4 बजे के पहले कभी भी ले लेना. So I went around 3:30, पास में ही था, so I just went around 3:30. And again they said नहीं अभी तो यहाँ कोई नहीं है, as in आप एक काम करो कल ले लेना ये वो, या फिर आप आधा घंटा वेट कर लो, कोई आ जाएगा, 4 बजे बंद होगा, कोई आ जाएगा. मैंने कहा नहीं, I mean I have to go, else doctor will go and all those things. So फिर भी somebody came, नहीं, what can we do? और जो dispatch का ना वो वहीं रखा होता है टेबल. I just saw कि यहीं पे है, and मैंने कहा यही है, and he was like see we can't give. मैंने कहा वो रजिस्टर भी रखा होता है, you just need to note it down and they just take the signs. और बहुत जूनियर स्टाफ ये काम करता है, and there's nothing very technical about it. So I just picked, मैंने कहा प्लीज आप ये दे दो, और मैं रजिस्टर में सारा नाम वो सब लिख लेती हूँ. तो फर्स्ट he said no, but then I just said twice please. He said okay चलिए आप ले लीजिए, and then he was from other department. He wrote the name and this thing, and I thanked him, his entire family and everybody. मतलब 2 बारी कल बैक टू बैक ऐसे हुआ ना कि अभी तो काम होना ही नहीं है, बट मैं इतना ज्यादा श्योरिटी के साथ गई थी, and it happened. So it really works. It really, कभी कभी थोड़ा चैलेंजिंग होता है तो उस समय लगता है अच्छा थोड़ा ग्रेटिट्यूड कम हो गया. एक्चुअल में यही होता है. यस. तो फिर so I have just started with that power books जो सुबह का है ना, but I've asked for the session जो previous वाला है. Let's see, क्योंकि I liked it कि वो magic हो रहा है, but if you need to exponentially increase it, you know, the intensity, or so you need to know how best to put in your effort. और अब ऑफिस खुल गया है, so थोड़ा time reset करना it's getting challenging, but I'm sure I'll do it. Yeah, yes, you will do it. And you could have easily done, you know, हम लोग भूल जाते हैं. You could have done the magnificent outcome for your test and your reports. हाँ तो हाँ बहुत जल्दी हो जाता है. ओके, हम लोग कितने बार report भी भूल जाते किया, हैं. With practice वो भी किया था. When wonderful. magnificent outcome. हाँ वो रिपोर्ट भी सही आई. मैं तो एग्जैक्ट वो गूगल करके आपने एक बार बताया था ना, एग्जैक्ट जो वैल्यूज चाहिए वही लिखने का है. I just wrote the exact value. But it was हाँ हेलो श्वेता जी, मैग्निफिसेंट आउटकम इतना वो है कि मेरा एवरीडे आई यूज. अभी का मैं बता रही हूँ, माय नीस इज हियर, एंड मैं अभी 8 बजे डिनर के लिए हम लोग निकले, तो आई वाज लाइक 7:30 हो गया, तो मैंने आउटकम ऐसे रखा कि बाय 8 एंड बाय 9 आई एम होम, एंड जो बिल होगा दैट विल बी विद इन 1200. और बिल्कुल वैसा हुआ, एंड आई एम होम बाय 9. Wow, awesome, awesome. Always do that magical outcomes. Always do it. It's wonderful. This is Wonderful, amazing. actually. That I think जो लोग न्यू हैं सेशन में, आप समझ लो वो वाला जो प्रैक्टिस है ना, वो सबसे अमेजिंग प्रैक्टिस है. और हम आप जितने जन यूज करते हैं वो उसको हर बार उसको यूज करते ही करते हैं. मतलब सबसे पहले बोलते हैं ना, जैसे बोलते हैं कि एलोवेरा आता है ना मन में, वैसे ही मैग्निफिसेंट आउटकम आता है. इट इज दैट I अमेजिंग. just do and I forget it. कि हाँ ये हो जाएगा, बस इतना कॉन्फिडेंस से निकल जाती हूँ. And संजीवनी every बूटी day है होता वो है, तो. every single day होता है. Yes, yes, it is like that. Ma'am, which day is it? Magnificent outcome? I think day 21 पे है, but I'm not sure. Yeah, Okay, it is 21 yet to पे है. come. Yes. Oh. Yes, it is yet to come, but you've already done the book, तो उसमें है, Yes. पहले आप कर चुके होगे हो सकता है. तो it will be a revision. That's what I said. जो लोग न्यू हैं उनको हम लोग थोड़े दिन बाद में करेंगे उसको, आप in the 3rd week. Yeah. So yes, anyone else has a question or a sharing? तो yes, श्वेता जी, more and more magic in your life. and नीतू जी, आपको जो लोग आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो आपको शेयर करना चाहिए. आप दूसरे जन को इंस्पायर करते हो, आपको ब्लेसिंग मिलती है, बट इट हैज़ टू बी अ प्रॉपर वे. जैसे श्वेता ने शेयर किया कि आपने कैसे कैसे ग्रैटिट्यूड किया, उसका रिजल्ट क्या आया पॉजिटिव, है ना. देन इट्स अ प्रॉपर शेयरिंग विच विल इंस्पायर एंड यू नो सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स ऑल्सो. सो थैंक यू नीतू जी एंड श्वेता फॉर यू नो शेयरिंग एंड मोर मैजिक इन योर लाइफ. थैंक यू. Yes. So I think let's call it a night if no one else has a sharing or a question, and we'll I connect just tomorrow. wanted to say, Yeah. जैसे Yes. हम लोग बोलते हैं कि सबको नाम से बुलाना चाहिए. Hmm. Since 22 years of my marriage, I never heard a word by my name in my family. Not from my mother-in-law, not from my father-in-law, not from my husband. Huh. But as I started working in school, as Huh. they called me people Pallavi, I felt so happy. And in this session when I come and you all call me Pallavi, I feel like, wow, this is my family.
So thank you everyone Yes, to याद call me by आता my name. Yes, 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 wonderful. yes. Thank you and good night, everyone. Good night. Dimple Ma'am, had raised her hand somewhere. I think she's gone now. Yeah. ma'am, Yes. in case I was irrelevant or I spoke a negative word, I'm really sorry. There was no intention. No, Jagriti, you are like totally correct. I am sorry. I apologize to you also and to everyone for going out of line. It's just a thing that if someone has practiced, then a question is understood properly. Randomly, we can ask anything. I can also ask n number of questions. But if we are here for learning, see, this is like a voluntary program for everyone. I'm not charging anyone for anything. Yeah. So if we come here, maintain the decorum of the session, create that positivity for everyone, then it feels nice. Then only you will like to come. Then only anyone else will like to come, and then only I would like to take the session. Yeah. I'm also, I also, do my own things the whole day, have my own challenges, and come here for all of us, not just for me. I'm definitely, सब थोड़ा बहुत तो दिखाया, कुछ आपके लाइफ एक में पीस भी नहीं खाया। 1% भी अगर लेके आ रहे हैं कुछ तो लेके आ रहे हैं. So I would want, कि थोड़ा सा सब लोग अच्छे से रहें. So I'm sorry. दूध पिया क्या? Do the practices and then ask. Then it's relevant. Then you say कि हाँ मैंने इतनी सारी practice की है, कुछ result नहीं दिख रहा. You are asking about some breakdowns for which you have not done any gratitude. So how can I help? I can tell you ये कर लो, but you have to start. You have to take the step. Okay? Yes. Yeah. So I thank you. have to be thankful for my health. That you have to read the chapter, okay, and then come back. Okay, so thank you. Yeah, so tomorrow is a wonderful chapter जिसके लिए अभी तक हम लोग इतने पिछले 12 दिन से पॉइंट्स कलेक्ट कर रहे हैं, राइट? आप कल से वो अमेजिंग डे स्टार्ट होने वाला है जिसके लिए हम लोग इतने दिन से कर रहे हैं, जिसके लिए इस सेशन में आए हैं. ओके, सो थैंक यू एवरीवन. गुड नाइट एंड Thank सी यू ऑल you. टुमारो. थैंक Good यू. night. Everyone. Night.